A very good morning to all of you dear children. Today I am going to start class 7th, first chapter. It is nutrition in plants. In class 6 you have studied about what is the necessity of food in our life. फूड की हमारी लाइफ में क्या ज़रूरत है एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ components of food we have studied, about the different types of sources of food we have studied, and in the next it is nutrients. Nutrients we have studied about in class 6 chapter number 2, different types of components of food. These are called nutrients. If we can explain what are these nutrients. First is carbohydrates and fats. These two components of food are energy giving components. They gives us energy to run various life processes. And next is proteins. Proteins they help us to grow well and they help our body to repair different types of tissues. Next is vitamins and minerals. These both they help our body to protect us from various diseases. And what are the sources? If we discuss the sources of carbohydrates is grains, different types of grains like wheat, rice, maize, bajra, etc. And the sources of fats are, all of you know, all the vegetable oils and ghee. These are the sources of fat and they both are energy giving components of the food or energy giving nutrients of the food. And next is proteins. Various types of pulses we can take example like soybean, chole, rajma, chana, masoor, arar, moong. These are all pulses. These come under the category of proteins and they help us our body to grow. Next is vitamins and minerals. These are these components of foods we get from fruits and vegetables, and these components of food protect us from various diseases. Now the question arises, what is the requirement or why do we need different types of nutrients in our body? And we have discussed these are the all requirements to grow well, to get energy for various life processes, and next one is to protect us from different types of diseases. And now next topic is mode of nutrition in plants. Mode of nutrition. Nutrition, all of you know, nutrition is the mode of taking food in by the organism. कोई भी ऑर्गेनिज्म का फूड लेने का जो तरीका होता है, जिस तरीके से वो फूड को लेता है अपनी बॉडी में और उसको यूटिलाइज करता है, उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं. These are nutrients and this is nutrition. How we take the food in and how we utilize. So in this category first comes autotrophic. So plants, all of you know, plants are green in color and they can prepare their own food. आपने देखा होगा बच्चों, हम कभी प्लांट्स को कभी खाना नहीं देते हैं, हम उनके लिए कभी राजमा चावल बना के कुछ नहीं देते हैं और तब भी वो अपना खाना खुद बनाते हैं और आप देखते होंगे धीरे धीरे वो ग्रो करते हैं. दे ग्रो बिकॉज दे आर लिविंग बींग्स ऑल्सो. तो क्यों? क्योंकि वो अपना खाना खुद बना लेते हैं एंड बिकॉज दे आर ऑटोट्रॉफिक एंड दे कैन प्रिपेयर देयर फूड ऑन देयर ओन, इसलिए वो ऑटोट्रॉफिक है. ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं. दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक. सो ऑल ग्रीन प्लांट्स, आई एम टेलिंग यू, all green plants are autotrophic in nature. Why? Because they can prepare their food on their own. Next, under this category, next come heterotrophic. Hetero means other. जब हम अपने खाने के लिए या हम अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, then this type of nutrition is called heterotrophic mode of nutrition. जैसे कि जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, all human beings all are dependent on plants, whether they are directly or indirectly. हम सब plants के ऊपर डिपेंडेंट हैं for our food. कैसे? कि suppose I am a vegetarian, I take in food. मैं सारे वेजिटेबल, जितने भी वेजिटेबल्स हैं या मैंने जितने ग्रेन्स, पल्सेस जो भी मैंने खाया है वो सब we get it directly from plants. And some there are non-vegetarians also.
तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, जो कि दूसरे एनिमल्स पे भी डिपेंड करते हैं। तो या फिर एनिमल्स की हम बात करें, एनिमल्स जितने भी होते हैं, जैसे कि हम लायन की बात करें, लायन ने गोट को खाया या डियर को खाया, एंड अल्टीमेटली जो गोट और डियर है वो किसको खाएंगे, वो प्लांट्स को खाएंगे। सो वी कैन कंक्लूड दिस, ऑटो मीन्स सेल्फ and trough means nourishment. Means they can prepare their food on their own. And second, hetero. Hetero means other, and trough means nourishment. So heterotrophs means which depend on other plants and animals for their food. Now the question arises, how do these plants, these green plants, prepare their food on their own? So now the question arises, how do these plants prepare their food? कि ये जो प्लांट्स होते हैं ये अपना खाना कैसे बनाते हैं, ये अपना खाना वेयर डू दे प्रिपेयर देयर फूड, कहाँ पर वो अपना खाना बनाते हैं, वो खाना बनाने के बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स को कैसे पहुँचता है, वो खाना कहाँ बनता है, किसने बनाया, उन्होंने कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं जिनको यूज़ करके उन्होंने वो खाना बनाया, और किस प्रोसेस से उन्होंने ये अपना फूड प्रिपेयर किया। ओके, so we will study about this. Leaves are the food factories of plants. ये सब आप बच्चे जानते हैं, सारी टीचर्स आपको बोलती हैं leaves are the food factories of plants, ये आपने अभी तक सुना है। लेकिन लीव्स ही क्यों फूड फैक्ट्रीज हैं प्लांट्स की? लीव्स में ऐसी क्या खास चीज़ होती है जिसकी वजह से वो खाना बना सकती हैं, जबकि प्लांट के अदर पार्ट्स खाना नहीं बना सकते? सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस. All of you know, if I draw a very simple diagram, these are all roots and these are generally brown in color. All of you know. And this is stem. This is generally brown in color but it may be green. Green भी हो सकता है और soft tender भी हो सकता है. Next come, it is leaf, and leaves are called food factory. All of you know. It means कि जो ज़्यादा मेजर फूड है, मेजर पार्ट ऑफ द फूड इज प्रिपेयर्ड बाय दिस लीव्स. ओके, लेकिन अगर इसके प्लांट के दूसरे पार्ट्स भी ग्रीन इन कलर हैं, वी कैन टेक एग्जांपल, सपोज कि स्टेम है उसका ग्रीन कलर का है, लीफी है, हर्बेशियस है, तो उसमें भी खाना बन सकता है. और अगर सपोज कि अगर कोई फ्लावर है और फ्लावर के सेपल्स होते हैं, वो भी आपको पता है, वो भी ग्रीन कलर के होते हैं. दिस इज फ्लावर एंड दीज आर पेटल्स बट दीज आर ग्रीन इन कलर, सो दे कैन ऑल्सो प्रिपेयर द फूड, बट मेजर पार्ट ऑफ द फूड इज प्रिपेयर्ड बाय दीज लीव्स. नाउ अब ये लीव खाना कैसे बना सकती हैं? आई जस्ट टेल यू. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मेक diagram so that all of you know air is present around the leaves. All of you know. And in the air a gas is present called carbon dioxide. Understood? And these roots absorb water from the soil and some minerals also. This water is absorbed by these roots, and when these roots pass this water upwards, जब ये पानी ऊपर चढ़ता है, और ऊपर कैसे चढ़ता है? लीव्स में और स्टेम में पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं और वो सब की सब कनेक्टेड होती हैं, सब लीव्स से भी, फ्लावर्स से भी, बर्ड्स से, फ्रूट से, सबसे वो कनेक्टेड होती हैं, दीज पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स. ओके, ये वाटर
इसके थ्रू सक किया जाता है, रूट्स के थ्रू, एंड इट कम्स अप, ये यहाँ पर ऊपर चढ़ता है। और ऊपर चढ़ने के बाद आपने लीव्स में भी ये चीज़ देखी होगी कि देयर इज़ अ मेन वेन, यहाँ पर एक वेन होती है और यहाँ पर फिर और बहुत सारी वेन्स होती हैं, छोटी छोटी वेन्स होती हैं। तो ये पानी इन वेन्स के थ्रू, बिकॉज देयर इज़ अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड, इसके अंदर पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है, यहाँ पे पानी इनमें वेन्स में जाता है और फिर यहाँ से दूसरी उससे जो थिन वेन्स हैं उनमें जाता है और इस तरह से वेन्स सारी वेसल्स में पहुँच जाता है और ये पूरे लीफ में पहुँच गया। अब यहाँ पर वाटर भी पहुँच गया। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एयर में से कैसे पहुँची? जो लीफ का डाउन साइड होता है, नीचे वाली सरफेस और कभी कभी ऊपर वाली सरफेस पर भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, बहुत छोटे, दे आर वेरी वेरी माइन्यूट, दे यू कैन नॉट सी देम विद योर नेकेड आइज, आप अपनी नेकेड आइज से उनको नहीं देख सकते। एंड दे आर गार्डेड बाय 2 गार्ड सेल्स, उनके चारों तरफ 2 गार्ड सेल्स होती हैं और उसके बीच में बिल्कुल छोटा सा पोर होता है। उस पोर के थ्रू दिस कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स इनसाइड द लीफ। ठीक है, तो अब कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गया, वाटर भी आ गया, वाटर थ्रू दीज पाइपलाइंस एंड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू दीज स्टोमेटा। नाउ व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, और कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है हमारी फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करने के लिए? देयर इज अ नीड ऑफ सनलाइट, इफ देयर इज नो सनलाइट देयर इज नो फोटोसिंथेसिस। अगर सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि लीफ के अंदर एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है, ठीक है, और उस ग्रीन कलर के सब्सटेंस को, और वो समटाइम्स मैंने भी आपको बताया था स्टेम में भी प्रेजेंट होता है एंड समटाइम्स अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट ऑल्सो। और ये जो ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है इसको कहते हैं हम क्लोरोफिल। अंडरस्टूड? एंड दिस क्लोरोफिल ट्रैप्स सनलाइट, ये सनलाइट को ट्रैप कर लेता है और इसकी प्रेजेंस में फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होते हैं और फूड बनाते हैं। वी कैन राइट द इक्वेशन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस water in presence of sunlight and chlorophyll gives, what gives? It is carbohydrate, or you can say in simple words food. इसने फूड प्रिपेयर कर लिया एंड और क्या बनता है? इसमें बनती है ऑक्सीजन। और नेक्स्ट जो इसमें कंपोनेंट बनता है वो बनता है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन आपको पता है हमारी पूरी अर्थ को चलाने के लिए दैट इज अ वेरी इसेंशियल गैस विच इज इवॉल्व्ड बाय दीज ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बाद ऑक्सीजन को इवॉल्व करती हैं। दिस इज ऑल्सो very very important part of this photosynthesis process. If there is no photosynthesis on the earth, suppose कि हम सोच लेते हैं कि photosynthesis नहीं होती, अगर photosynthesis नहीं होगी तो ये plants खाना नहीं बना पाएंगे, they cannot prepare their food, और ये सारे plants die हो जाएंगे। जब ये plants die हो जाएंगे तो जो भी इनके ऊपर dependent हैं, whether they are animals or human beings, वो सब भी die हो जाएंगे। So there would be no life on the earth. एंड ऑल ऑफ यू नो, और ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस किसकी वजह से हो रही है? ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है सनलाइट की वजह से। सो वी कैन से दैट सनलाइट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। ओके, यू कैन राइट दिस। Okay, dear children, now we will do some exercises. Question number 1, why do organisms need to take food? Organisms need to take food because it gives energy for various life processes, it helps us to grow, it protects us from various diseases. Question number 6, fill in the blanks. Green plants are called autotrophs since they synthesize their own food. The food synthesized by the plants is stored as starch. In photosynthesis, solar energy is captured by the pigment called chlorophyll. During photosynthesis, plants take in carbon dioxide and release oxygen. That's all for today.
If you like my efforts, please share, comment and subscribe my channel. Thank you.